Let's get you a top focus story coming in from Uttar Pradesh in a lead up to a very, very crucial set of assembly by-polls in the state. You have the rivalry between Yogi Adityanath and his predecessor that has reached a point of no return. Now, there is this huge and a grave provocation that appears to be the long-running bulldozer-powered and encounter-laced crackdown on the mafia by Yogi government. To this, Akhilesh has increasingly resorted to targeting Yogi Adityanath over his status as the Mahant of the famous Gorakhnath Mutt. Now, first he promised that when the SP forms a government after Uttar Pradesh's elections that are due in 2027, he says all the bulldozers in the state would be sent to Gorakhpur. And now he's gone a step ahead. He's formally said that there is no difference between the head of the mutt and the mafia. As you're about to see, Akhilesh's remarks aren't restricted to any one mutt or any one opponent. Listen in first up to what Akhilesh has said. मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। नहीं, अगर आप डिक्शनरी उठा के देख लो भाई डिक्शनरी तो आपको भी उठा के देखनी पड़ेगी। सरकार ने खुद जारी किए हैं, कई अखबारों ने खुद जारी किए हैं वो नाम, वो नंबर्स। तो जो हमारे साथी यहाँ पूछ रहे थे, बताओ उसमें पीडीए परिवार के लोगों के 60 से लेकर 70% लोगों का एनकाउंटर हुआ है कि नहीं हुआ है? Now, the story is far bigger because there is the other point that the SP chief is making, and that is about the demographics of those who've been killed in police encounters. Now, he says that these numbers are skewed towards those belonging to the PDA group, which is the backward classes, the Dalit and the minorities. Now, not only does the BJP not concur with that, but it had also viewed this comparison between mafia gangsters and temple priests as an all-out assault on the Hindu faith and Sanatan Dharma. Listen in to their response. देखिए, समाजवादी पार्टी को इस बात की जानकारी नहीं है कि मठ मंदिर और माफिया में क्या अंतर होता है। वो माफिया के मजार पर फातिया पढ़ने वाले लोग हैं और प्रदेश की जनता से, देश की जनता से इन्हें माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी विरोध करते करते इंडी अलायंस के लोग हिंदू और सनातन विरोध कैसे करते हैं उसका एक और परिचायक आज अखिलेश यादव जी ने दिया है, जब वो कहते हैं कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता। सोचिए, क्या किसी और धर्म के लिए बोला जा सकता? मतलब कि वोट बैंक की मिले ताली, इसलिए हिंदू को दो गाली, हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट। और इसी चक्कर में आज जिस प्रकार से कहा गया है कि मठाधीश जो होते हैं वो ज्यादा अंतर नहीं होता उनका माफिया से। Now, the BJP is also of the view that it's not just Akhilesh, but the entire India bloc that has an agenda against the Hindu faith. For instance, while Samajwadi Party's Ram Gopal had earlier said in May that the Ram Mandir in Ayodhya looked bekar or useless, is what he said. To Rahul Gandhi, who'd rained jibes at Prime Minister Modi's underwater puja, this remember in Dwarka. Then you had Mallikarjun Kharge, who highlighted how a candidate named Shiva could beat the BJP's Ram, while the DMK has openly declared that they are enemies of Lord Ram. And this also brings us to a little over a week ago, where you had seen the SP chief, his party members, had warned of bulldozer action also against the Gorakhnath Mutt. So the story really is, remember, big, and we'll also try to get you more responses. I'm told that we are also trying to connect with Satyendra Das, the Ayodhya seer, joining us. सत्येंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला और हमसे आप बात कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि जो अखिलेश यादव ने ये पूरा कमेंट रखा है, जो ये कहते हैं कि एक महंत और माफिया में कोई फर्क नहीं होता, आप इससे कितने आहत हैं और क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बहुत गलत बोला, क्योंकि मठाधीश आतंकवादी हैं और आतंकवादी के समान है, ऐसा उनके बोले हैं। देखिए, जितनी भी भारत के हैं वो किसी न किसी मठाधीश से उनका संबंध है, इसलिए वो केवल मठाधीश के माध्यम से सारे देशवासियों को आतंकवादी बना दिया है। कभी सोचा नहीं कि सारे देश के जितने हैं वो सब आते हैं, क्योंकि किसी न किसी रूप से आतंकवादी जो बता रहे हैं मठाधीशों को, तो मठाधीश आतंकवादी नहीं होते हैं। उनकी जो उद्देश्य होता है वो सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय, सर्व कल्याण हो और सबके लिए उनके सहयोग होते हैं। और आतंकवादी जैसा शब्द जो प्रयोग किए हैं अखिलेश जी ने, उन्होंने बहुत गलत किया
देता, यह उनको शोभा नहीं देता, क्योंकि आतंकवादी जो होते हैं वो केवल आतंक फैलाते हैं, दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं और दूसरे को परेशानी करते हैं। ऐसा किसी भी मठ के माध्यम से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो मठों के माध्यम से मठाधीश हो और इस प्रकार के देश में आतंक फैलाता हो, दूसरे को कष्ट, दूसरे को परेशान करता हो। ऐसा है नहीं। उन्होंने जो कह दिया है कि मठाधीश को आतंकवादी, वो बिल्कुल गलत है और इसके लिए उनको क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की जो भाषा हुई वो निश्चय ही पूरे देशवासियों को आतंकवादी बना दिया, क्योंकि समस्त देशवासियों का संबंध किसी न किसी रूप में उनको इन मठाधीशों से संबंध है। तो मठाधीशों से जेकर संबंध है वो सब आतंकवादी होंगे। ये उन्होंने जो कहा वो गलत है, वो निंदनीय है। जितना भी उनके इन शब्दों को निंदा किया जाए वो ही है, कम है, क्योंकि उन्होंने जो भाषण बोला है वो पूरे देशवासियों को आतंकवादी बना दिया। ठीक है, महंत सत्येंद्र दास जी, हमसे बात की, सब बहुत बहुत शुक्रिया। सो you've also heard prominent seers now really taking up Akhilesh Yadav and saying that he needs to apologize for the kind of comments that he has made. We also have Swami Chakrapani who's joining us on the phone line. Swami ji, shukriya for talking to us on Times Now. अब आप कैसे इस कमेंट को देखते हैं और इसके पीछे की मंशा क्या है सर? क्यों अखिलेश यादव ने किस तरह का कमेंट रखा है सामने? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक और वोट बैंक पर कैसे अपना कब्जा रखा जाए वही उनके दिमाग में है और इसीलिए इस तरह का स्लैंडर या हिंदू धर्म के खिलाफ जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है वो, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और वोट बैंक की जहाँ तक बात है तो निश्चित रूप से ये मुस्लिम तुष्टीकरण की एक पराकाष्ठा है। आप उसने मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधे हो गए कि आप हिंदुओं के मठों पे, आश्रमों पे, संतों पे आप टिप्पणी करने लगे। यानी योगी जी से लड़ते लड़ते आप आश्रम, मठ और मठाधीशों से लड़ने लगे। कितना दुर्भाग्य की बात है। जब मठाधीश और माफिया को एक साथ जोड़ रहे हैं, आपने इमाम को क्यों नहीं बोला, मौलाना को क्यों नहीं बोला, चर्च के पादरी को क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपको सिर्फ टारगेट हिंदू पे करना है। इतना यह निंदनीय है कि जितनी भी निंदा की जाए कम है। इनको तत्काल अपने शब्द वापस लेने चाहिए और समस्त हिंदू समाज से, हिंदुस्तान से माफी मांगना चाहिए। इस तरह की बयान दे करके जिस तरीके से भावना को भड़काने का काम किया, जिस तरह भावना को आहत किया है, निश्चित रूप से हम सब बहुत आहत महसूस कर रहे हैं और ये निश्चित रूप से चुनाव में दिखाई देगा। और ये कहीं ना कहीं क्षुद्र, एक कहावत है, क्षुद्र थोड़े जले उतरा है। यानी जैसे ही थोड़ा चुनाव में लाभ हुआ तो ये पानी में उतराने लगे, यानी कि इनके बोल ऐसे बिगड़ने लगे, जो इनके दिल में है वो बाहर आने लगे। इस सब का चीजें बहुत ही हम लोग आहत हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं, इनकी निंदा करते हैं और तत्काल इनको देश से माफी मांगना चाहिए। ठीक है, तो आपने भी कहा कि अखिलेश को देश से माफी मांगनी चाहिए। स्वामी जी, हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया। We'll continue to keep our focus on the story and remember we had also spoken about how Akhilesh Yadav not very long had spoken about bulldozers heading to Gorakhpur in case you have the SP coming to power in 2027, the next assembly elections, to which Yogi Adityanath had launched a full frontal attack and he had told Akhilesh, keep dreaming on. 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है, क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था तब उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी। And the BJP has also escalated the entire attack on Akhilesh by talking about the days of the Samajwadi Party rule when they say that the mafia would reign supreme and would act with abandon against even the police. The BJP believes that the entire India bloc today is against the Hindu faith.
Well, this shows that what sort of mindset they come from, what sort of hatred for Hinduism they come from. When mafia was in their time, when the mafia used to go to police station and then kill the police officers. Not now. Now there's a person who's heading a mutt also, and is the Chief Minister of the state. He is doing justice to the state. Law and order situation has improved tremendously. But the problem with them is that all mafias are friends of Mr. Akhilesh Yadav and team. And that's why Mr. Akhilesh Yadav has problem with the Mathadish, the Seer taking action against those mafias. This is the same alliance which was against Prabhu Sri Ram's Mandir and Ayodhya. This is the same alliance where Mr. Akhilesh Yadav uses the term Mathadish. This is the same alliance which stands with a rapist of a 14-year-old daughter just because for vote bank compulsions. This is the same alliance which calls Sanatan dengue, malaria, AIDS. The people of India rejected, the Hindus of India rejected this alliance in 2014, 19 and 2024, and the people of India will continue to reject this alliance because of its excessive conscious Hindu hate.